हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gained today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos, not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important, very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, देन आपके नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, एंड आखिर में कुछ वन लाइनर और फिर आपका होमवर्क। ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, तो स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि किस स्टेट ने अभी टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज टू बी असिस्टेड अंडर ABRY। ABRY क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये किस लिए होगी? जैसे आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्या इसको ऐसे समझिए कि किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया अभी? क्या रहेगी वो स्टेट? महाराष्ट्र। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? अगर डाटा देखा जाए तो 6.5 लाख के करीब, 6,49,560 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी गई बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आपके
आ जाता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है। फिर ये तो हो गई फर्स्ट पोजीशन, तो पहली पोजीशन पे रहा आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे आया आपका तमिलनाडु एंड थर्ड पे आ गया आपका गुजरात। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना डाटा, किस स्टेट ने टॉप किया इन द विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज टू बी असिस्टेड अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, वो है महाराष्ट्र स्टेट विद अराउंड 6,50,000 बेनिफिशरीज या न्यू एम्प्लॉयज या न्यू एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है आपका, अगर हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कहाँ पे होता है, सबको पता है गोवा में होता है। तो ऐसे याद रखना कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का कहाँ पे मनाया गया, गोवा में मनाया गया। ये 7th एडिशन था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 7th एडिशन के साथ साथ याद रखना है कि किसने इसको लॉन्च किया। तो देखें, अगर एकदम डाटा फॉर्मेट में देखें, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की 2021 में जो हुआ, कहाँ पे हुआ, गोवा में हुआ। कौन सा एडिशन था, 7th एडिशन था। अब क्वेश्चन बनता है, कुछ थीम रही होगी इसकी, किसी ने इसको लॉन्च करा होगा, किसी ने इसको इनॉग्रेट करा होगा, कोई मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रही होगी इसकी। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन दोनों ने मिलके इसको इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ये रहेंगी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, जितेंद्र सिंह के द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। कौन सा एडिशन है, मैं बता ही चुका हूं, 7वां एडिशन है। अब अगर इसकी थीम आ जाए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया, ये थीम रहेगी आपकी। आई रिपीट, थीम क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग क्रिएटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है हमें। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 की कहाँ पे मनाया जाता है, गोवा में। 2021 में कौन सा एडिशन था, 7वां एडिशन था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑर्गेनाइज कराती हैं। जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया था और जो थीम रहेगी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग क्रिएटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। नेक्स्ट पे आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सीबीडीटी। क्या होती है सीबीडीटी की फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अभी रिसेंटली टैक्स पेयर्स की इंफॉर्मेशन का डाटा कलेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन या फिर एक सिस्टम लॉन्च किया जो है ई वेरिफिकेशन। आई रिपीट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ई वेरिफिकेशन, सीबीडीटी के द्वारा। क्वेश्चन पूछ ले, सीबीडीटी ने क्या लॉन्च किया, ई वेरिफिकेशन लॉन्च किया। है क्या ई वेरिफिकेशन, टैक्स पेयर्स की डाटा को कलेक्ट करने के लिए कि कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मिसमैच है या नहीं, उस सब के लिए इसको लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सीबीडीटी ने लॉन्च किया ई वेरिफिकेशन। अगर हम बात करें सीबीडीटी की बात करें तो मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी इसकी, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री, टैक्स फाइनेंस से रिलेटेड है तो क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर पूछे चेयरपर्सन कौन रहेंगे इनके, तो वो है जेबी मोहपात्रा जी। ठीक है, फिर अगर पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ है सीबीडीटी का, तो कहाँ पर है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में रहेगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट की, जो कि इंडिया का पहला है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्यों, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल क्या मैंने बताया था आपको, ये फ्यूल ऑफ फ्यूचर है। जब इसको बर्न करते हैं, इससे एनर्जी जनरेट करते हैं, तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर जाती, मतलब ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करता। तो इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पे सेटअप किया गया, ये सेटअप किया सिमहाद्री में। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ कि सिमहाद्री लोकेटेड कहाँ है, किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। ये
आंध्र प्रदेश में लोकेट रहेगा सिमहाद्री, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। कहाँ पर? सिमहाद्री में, आंध्र प्रदेश में। अब इसके साथ साथ याद रखना, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बना रही है क्या है? एनटीपीसी। एनटीपीसी आपका इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन, एनटीपीसी नॉट एम हो जाता है कई बार, एनटीपीसी, ठीक है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अब इसके रिलेटेड देखो, एक टारगेट सेट किया इंडिया ने कि भाई हम इंडिया को ना कार्बन न्यूट्रल बना देंगे 2070 तक। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का मतलब हम एनर्जी को, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे ना, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे ना कैसे कंज्यूम करेंगे, मतलब पॉल्यूशन को हम जीरो करने वाले हैं 2070 तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये टारगेट रहेगा, याद रखना। एनटीपीसी भी याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बनाया वो, और जो टारगेट रहेगा इंडिया का 2070 रहेगा। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं, अब एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी, मतलब सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे एनटीपीसी के? वो है गुरदीप सिंह जी, गुरदीप सिंह जी। और कब बनाया गया था एनटीपीसी? फाउंड कब किया गया था? 1975 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके जरूर चलना। अभी रिसेंटली एसजेएफआई, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑनर किया है सुनील गावस्कर जी को विद अ मेडल। एक तो ये चीज़। अब इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी कुछ अवार्ड्स दिए हैं, जैसे हम देखें स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वीमेन, मैन, वीमेन ऑफ द ईयर कौन है? नेक्स्ट, टीम ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर कौन सी है? 2021 के अवार्ड्स बता रहा हूं मैं ये आपको, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, ये आपको टाइम दे रहा हूं मैं इतने। फिर पैरा एथलीट ऑफ द ईयर, 2021 के कौन है पैरा एथलीट ऑफ द ईयर? पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मैन भी बता दो और वीमेन भी बता दो मुझे, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन रहेंगे जल्दी से कमेंट करो। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैन की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं तो नीरज चोपड़ा जी, जो कि जेवलिन थ्रो से रिलेट करते हैं। एथलेटिक इनका इवेंट रहेगा, जेवलिन थ्रो इवेंट रहेगा और स्पोर्ट्स रहेगा एथलेटिक्स। पूछा जाए इनको क्या हुआ था, इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था टोक्यो ओलंपिक गेम्स के दौरान, इन्होंने जीता था। वीमेन की बात करें तो वीमेन कौन रहेंगी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती हैं। टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो किन्होंने ओलंपिक्स में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो इंडियन हॉकी टीम ने, इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसलिए उनको टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो प्रमोद भगत जी, प्रमोद भगत जी। प्रमोद भगत किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? ये बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। इनके साथ साथ सुमित अंटिल जी, जो कि जेवलिन, सुमित अंटिल जो कि जेवलिन से रिलेट करते हैं, इन दोनों को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में रखा गया। और वीमेन कैटेगरी की बात करें तो अवनी लखेड़ा जी, अवनी लखेड़ा जी जो कि राइफल शूटर हैं, इनको पैरा एथलीट वीमेन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। और ये सारे खिताब दिए किनके द्वारा जाते हैं? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे वेंकैया नायडू सर जी के द्वारा राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इस बुक को रिलीज किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेमोर रहेगा जो कि लिखा गया है। ऑथर कौन रहेंगे? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। राहुल रवेल जी ऑथर रहेंगे राज कपूर द मास्टर एट वर्क के। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ये तो थे फ्रेंड्स हमारे टॉपिक वाइज।
अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं आज के, जो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन में। पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी पहला फेज इनॉग्रेट किया गया काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का कहां पर, और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल और कौन सी रिवर को ज्वाइन करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल रहेगा, जल्दी बताइए। तो कहां पे ये काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया? वाराणसी में। वाराणसी किधर है? यूपी में। यूपी से रिलेटेड अगर मैं आपसे कुछ बात करूं तो वहां पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला गया। ये क्या है? ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का पहला, जो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल, मतलब ये कोई कार्बन रिलीज नहीं करेगा, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। पहली चीज। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इंडिया की पहली फर्स्ट रोपवे सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च की गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे सर्विस बनेगी। कहां पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का ही एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो कौन रहेंगी? कंगना रनौत जी। ठीक है, तो आ जाइए, आंसर क्या बनता है आपका? वाराणसी में। और ये विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल किस रिवर से ज्वाइन करेगा? गंगा रिवर से ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इन ए बी सी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है और कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला, द प्रोविजंस ऑफ द पीसीए फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2022 बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एनबीएफसीज ऑन और आफ्टर मार्च 31। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बी कह रहा है कि पीसीए फ्रेमवर्क विल बी एप्लीकेबल टू ऑल डिपॉजिट्स टेकिंग एनबीएफसीज एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज एंड ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ऑप्शन बी भी ठीक है। सी कह रहा है द आरबीआई इंट्रोड्यूस द पीसीए फ्रेमवर्क इन दिसंबर 2002 टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट द बैंक्स दैट बिकम अंडर कैपिटलाइज्ड ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी। तो ऑप्शन सी भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑल ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट से रिलेटेड है, कि कह रहा है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी असम स्किल यूनिवर्सिटी को $112 मिलियन का लोन दिया। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो, स्किल यूनिवर्सिटी है तो मतलब वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पे लोगों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारे मोटिव रहेगा। तो किस बैंक ने $112 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया असम स्किल यूनिवर्सिटी को? वो रहेगा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, मनीला फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर रहेंगे। प्रेसिडेंट है मात्सुगु असाकावा। ये बना कब था? 1966 में इसको बनाया गया था। एंड इसमें एज ऑफ नाउ अभी 68 कंट्रीज हैं टोटल मेंबर इसकी। फिर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर रहेगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर रहेगा पेरिस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस कंपनी ने अभी पहला अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जिसको वेल्थ एकेडमी बोलते हैं, वो लॉन्च किया टू ट्रेन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ट्रेन करने के लिए अभी एक प्लेटफॉर्म वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, किस कंपनी के द्वारा ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वेल्थ एकेडमी को लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया पेटीएम के द्वारा। अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो शेखर सर इनके चेयरमैन एंड फाउंडर एंड सीईओ बोलिए तो वो हो जाएंगे कौन? विजय शेखर शर्मा जी। 2010 में आपका पेटीएम बना था और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगला, कि किसने 7 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी को हेड किया? क्या है सेट? वो अलर्ट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अलर्ट की फुल फॉर्म होती है एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ये अलर्ट की फुल फॉर्म है, जो कि 7 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी बनी इसके लिए, और उसको जिन्होंने हेड किया उन व्यक्ति का आपसे नाम पूछा गया। वो रहेंगे मधाबी
पुरी, बकजी। और इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया था? सेबी के द्वारा सेटअप किया गया था, ये भी रखना। अलर्ट को सेटअप किसके द्वारा किया गया था? सेबी के द्वारा सेटअप किया गया था। सेबी की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? अजय त्यागी जी। ये इस्टेब्लिश 1992 में करा गया था। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो मुझे बता दो यूनाइटेड नेशन FAO ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है रोम, इटली में, यूनाइटेड नेशन FAO का। और ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलो, ये कह रहा है कि अभी किस स्टेट ने, नेम द स्टेट, किस स्टेट ने एग्रीमेंट किया यूनाइटेड नेशन FAO एंड ICAR के साथ, ताकि उस स्टेट के फार्मर्स को ट्रेन किया जा सके, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया जाए उन फार्मर्स के द्वारा। तो कौन सी स्टेट रहेगी वो आपसे ये पूछा गया, बताइए क्या है वो स्टेट का नाम? वो रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेट, मार्क कीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन FAO एंड ICAR के द्वारा टाइप करा गया। इसके अलावा अगर हम स्टेट्स की बात ही कर रहे हैं तो स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैं आपको कल करा चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी क्या बना दिया गया है? इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। और ये एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर? ये है आपकी उत्तराखंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर अभी फर्स्ट ड्रोन मेला कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में इसको ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट ड्रोन मेला। फिर जनरल कैटेगरी कमीशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? किस स्टेट के? हिमाचल प्रदेश के द्वारा जनरल कैटेगरी कमीशन को लॉन्च किया गया। फिर आपको उत्तर प्रदेश का एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के किस वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया है यूपी के किस वेटलैंड को? तो वो है हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और उत्तराखंड के ही चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी होते हैं, उनके द्वारा मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया। मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया। मिल्क फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन या फिर फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन होते हैं? वर्गीस क्यूरेन, ये भी याद रखना। मिल्क डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। बताइए कब है, नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंपनी ने एक्सपेंड किया अपनी पार्टनरशिप विद CBSE टू प्रोवाइड अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी फॉर 1 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। 1 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया के लिए CBSE ने किस कंपनी के साथ टाइप किया, ताकि ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कैसे करना है, टेक्नोलॉजी की समझ देना, फिर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फेसबुक के साथ किया। लेकिन फेसबुक तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों नहीं है फ्रेंड्स, बताइए? क्योंकि फेसबुक का नाम चेंज करके क्या हो गया है? मेटा। वेरी गुड। तो मेटा के द्वारा CBSE ने टाइप करा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या मुझे आप बता सकते हैं ट्विटर के जो नए CEO बने हैं उनका क्या नाम है? बताइए। CEO के नए ट्विटर के नए CEO इंडियन है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, न्यूज में रहे थे, क्या नाम रहेगा? पराग अग्रवाल। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंडियन का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ट्विटर के नए CEO बने हैं पराग अग्रवाल। चलो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके MCQ क्वेश्चंस। अब कुछ वन लाइनर फॉर्मेट्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, काफी इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपको बताते चलना है। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन है आपसे, पढ़िए इसको, कि किस कंट्री ने साइन किया एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्ट्रेंथन इंटर रीजनल कॉर्पोरेशन। इंटर रीजनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक टाइप साइन किया? वो है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में चलेंगे। हाइपर लोकल बैंकिंग सर्विस किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई, जो अलॉन्ग विद अ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम
फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बूस्ट देने के लिए ये हाइपर लोकल बैंकिंग सर्विस को लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने इसको लॉन्च किया, तो CSB बैंक के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2022 किस लोकेशन पे ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके द्वारा होस्ट की जा रही है? इंडियन नेवी के द्वारा। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मिलान। कहां पे होस्ट की जाएगी? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम है कहां? आंध्र प्रदेश में इसको होस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं AIBA का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। AIBA का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? IBA। ए हटा दिया है, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द गवर्नर जिन्होंने एक बुक रिलीज की जिसका नाम रहेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑन्कोलॉजी एट राजभवन। राजभवन में इसको लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है गवर्नर का नाम बताओ। मैं आपको गवर्नर का नाम बताऊंगा, लेकिन मुझे यह बताना है कि आप वो किस स्टेट के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी जी, इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज की गई प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑन्कोलॉजी राजभवन में। पूछा जा रहा है कि इनके किनके द्वारा लॉन्च की गई थी? जगदीश मुखी जी के द्वारा। आप मुझे बता दो किस स्टेट के गवर्नर हैं ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस स्टेट ने एक MOU साइन किया विद रेस पावर इंफ्रा के साथ 500 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पार्क से? किस स्टेट ने किया? राजस्थान ने करा ये टाई अप। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस। अब देखो, सिर्फ करंट अफेयर्स भी आपके लिए प्रिपरेशन में हेल्पफुल नहीं रहेंगे, तो आपको स्टैटिक पार्ट भी आना चाहिए। तो अब से हम डेली के आपके कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस लाया करेंगे आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। आपको ये कमेंट करने हैं एंड इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक दिन के अंदर मिल जाया करेंगे। इतने आपको इनका आंसर फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? सेकेंड, द टर्म कास्टलिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? GST रेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, क्या रेट है इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की GST रेट? फिर व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट? मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में? फिर नेम द कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, किस कमिटी की रिकमेंडेशन से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को पोस्ट को बनाया गया? तो ये आपके कुछ होमवर्क रहेंगे, जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट कीजिए एंड इसके आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। अ गुड न्यूज टू ऑल आवर व्यूअर्स, रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड एन कोर्स दैट इज IBPS PO एग्जाम कोर्स. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of times with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam and many others details. Apart from this, you can see here, we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3, then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare that will help you, or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.